A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present in class 11, financial statement of sole proprietorship chapter is going on. In the other language, we can say this is a final account. Final account is the last account. In this account, we will prepare the trading account, P&L account, and balance sheet, my dear student. These three things we will maintain. But in this video, we will learn that who are the users of financial statement. My dear student, as you know that in the first chapter we have studied that there are the two types of user, internal and external. And my dear student, in this chapter also अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी यूज़र इंटरनल और एक्सटर्नल होने वाले हैं. These are the internal user. Internal user, owner. Owner is मालिक. जो मालिक है, ऑनर है, definitely he will be user of the accounting information, is a user of the financial statement. Definitely owner will check the financial statement, trading account, P&L account and balance sheet. प्रॉफिट एंड लॉस वो चेक करेगा और बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी चेक करेगा और फर्म की बिजनेस की पोजीशन को चेक करेगा. तो ऑनर इज़ अ यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and definitely it's an internal user. Second one is a management. Yes, my dear student, management, in the management team, like a sales managers, purchase managers, many managers are available. Managers like employees, but manager भी check करेंगे आपकी किसको, financial statement को, and manager is a internal user. And last point is a employees and trade union. Yes, my dear student, एम्प्लॉयज़ को भी बोनस चाहिए होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, वेजेस चाहिए होती है. इस दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ विल चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, एंड एम्प्लॉयज़ विल चेक द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ट्रेड यूनियन माय डियर स्टूडेंट, जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर जो ट्रेड यूनियन बन जाती हैं, उनके जो लीडर्स बन जाते हैं, वो भी चेक करते हैं ताकि उनको भी वेजेस, बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के फ़ायदे हों, उन्हें पता हो कि बिज़नेस कितना अर्न कर रहा है और कितना हम बिज़नेस से ले सकते हैं. तो दीज आर द इंटरनल यूजर्स. नाउ दीज आर द एक्सटर्नल यूजर. इन द एक्सटर्नल यूजर, नंबर फर्स्ट इज़ अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इस माय डियर स्टूडेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोग हैं जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं. And suppose we are borrowing from bank or financial institution, so definitely financial institution and bank will check the financial statement, will check the balance sheet, and will check the every paper and every document of the business. So definitely bank and financial institutions are the users of financial statement. Next is the creditors. Creditors are like a suppliers. जो हमारे पास सप्लाई करते हैं सामान को, रॉ मटेरियल लाते हैं हमारे लिए, जो भी सामान होता है हम सेल आउट करने के लिए लेके आते हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, जब हम उन्हें पैसा नहीं देते तो वो क्या बन जाता है, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे देनदार बन जाते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्रेडिटर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी है, उनको पैसा हमें वापस करना है. तो क्रेडिटर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड सपोज एनी सप्लायर इज सप्लाइंग गुड्स and on the credit basis, so definitely you will check the trading account, P&L account and balance sheet. You will check the financial position of the business. You will check the financial statement. तभी वो आपको सप्लाई कर पाएगा my dear student. Next is the government and its authorities. Yes my dear student, गवर्नमेंट और उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं like income tax departments, they are the user and they are the external user of the financial statement. बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट को आपसे इनकम टैक्स चाहिए होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST चाहिए होती है, तो डेफिनेटली दे विल यूज़ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दे विल कैलकुलेट द योर इनकम. दैट्स वाई दे कैन से दैट योर इनकम टैक्स इज करेक्ट और नॉट. माई डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ को डेफिनेटली आपको शो करना पड़ेगा. यू हैव टू शो. नेक्स्ट इज़ माय डियर स्टूडेंट रिसर्चर्स, जो आपकी बिजनेस में रिसर्च करते हैं, दूसरों को रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स. या फिर हम कह सकते हैं अगर हमें कोई सर्वे करना है तो सर्वे के लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी.
और रिसर्चर्स जो होंगे डेफिनेटली वो यूज़ करेंगे किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट्स वाई दे कैन डू द फोरकास्टिंग, वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं आफ्टर रिसर्च। तो ये भी एक पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज दिस माय डियर स्टूडेंट, पब्लिक। यस माय डियर स्टूडेंट, पब्लिक लाइक यू एंड मी, पब्लिक। तो पब्लिक कैन यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैन सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी एक्सटर्नल यूज़र बन सकता है। सपोज माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू न्यूज़पेपर नेम इज टाइम्स ऑफ इंडिया। Sorry, not Times of India, is Economic Times. If in the Economics Times, all the balance sheets and profit and loss of many companies shows published, तो जब वो पब्लिश होते हैं तो कौन देखता है? एनी पर्सन कैन सी। तो अगर सपोज माय डियर स्टूडेंट, सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग इन दैट कंपनी, तो डेफिनेटली यू विल सी। तो अगर आप उसे देख रहे हो फ्यूचर के लिए, कभी के लिए भी, तो डेफिनेटली यू आर द पब्लिक एंड यू आर यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ इट। तो माय डियर स्टूडेंट, these 5 points are the external user and 3 points are the internal user. These are the users of the financial statement, my dear student. My dear student, I hope you understood this concept. So thank you very much and God bless you, my dear student.